નવલ સંધ્યાએ આજ છલકાયો પ્રેમ અંતરનો, મહેકતા સુરંજામને સ્નેહનું ઝરણું અંતરનું, તરંગોની સાદગી અને મુખની મીઠાશ, અંતરના આશીષ અને સાથે દિલના યાદ પ્યાર, વારંવાર સત્કાર, વારંવાર સત્કાર, વારંવાર સત્કાર છે. અભિષેક થયો જ્યાં આપના પગરવનો, સૂરજ ઢળ્યો જ્યારે આજે ગગનમાં, શંખનાદ સર્જ્યો રૂડા પંખીઓએ નભમાં, પ્રતીક્ષા હતી આપના આગમનની. આ મહેસાણાનું આંગણું પણ આજે સોળે કળાએ ખીલ્યું છે. દીદીજી, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત, અભિનંદન અને અભિવાદન છે. જોરદાર તાળીઓથી આપણે દીદીનું સ્વાગત અભિનંદન કરીએ છીએ. અમારા સોનેરી ટહુકે તમે પલળવાને આવ્યા છો.
અમારી ભાવનાના રંગોમાં તમે રંગાવાને આવ્યા છો. અનેક વરદાનો, શક્તિઓ અને દુઆઓની સોગાત લઈને આવ્યા છો. आवाज आ रही है आज उस गगन से, संगीत बज रहा है बेहद वतन से. जब भगवान के पैगंबर पधारे हैं मैसाना के रूहानी उपवन में, तो उनका स्वागत करने के लिए फरिश्ते पधारे हैं उस परम परमात्मा बागबान के बगिया से. तो जोरदार તાળીઓથી, દિલના ભાવોથી બંને દીદીઓનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત, અભિનંદન અને અભિવાદન છે. અને સાથે સાથે આ ઉત્તર ગુજરાતની ફૂલવાડીના એ અમૂલ્ય ફૂલો કે જેમણે પોતાની સેવા યાત્રા, ત્યાગ, તપસ્યાના 40-50 વર્ષો પૂર્ણ કરી અને આજે એમનું સન્માન સમારોહ થવા જઈ રહ્યો છે. ઓ વાલા મીઠા મોઘેરા મહેમાન, લાગણી અર્પું, મારી કલ્પના અર્પું તમને. હું સમર્પિત કરું છું શબ્દોની સલ્તનત તમને. છંદ અર્પું, અલંકાર અર્પું, રૂહાની ઈશ્વરીય પ્રેમ અર્પું તમને. સર્વ આજ વિશેષ સન્માનના અધિકારી આપ સર્વ સન્માનિત મહેમાનોને પણ અને વિશેષ આજે જેમનું અભિનંદન અને અભિવાદન થવા જઈ રહ્યું છે. ઓમ શાંતિ. આજે આપણે સર્વ પરમાત્મા પિતાના પરમ સાનિધ્યમાં ઉપસ્થિત છીએ, જ્યાં મહેસાણા ઉત્તર ગુજરાત સબઝોનની ઈશ્વરીય સેવાઓના 50 વર્ષની યાત્રાનું સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવ એક દિવ્ય આધ્યાત્મિક મેળા દ્વારા મનાવી રહ્યા છીએ. આ કોઈ થોડો સમય નથી. આજથી 50 વર્ષ પહેલાં એક નાનકડા બીજથી જેની શરૂઆત થઈ અને આજે આ સેવાઓએ એક વટવૃક્ષનું રૂપ ધારણ કર્યું છે. આદરણીય સરલા દીદીજીના અથક પ્રયાસ અને શ્રેષ્ઠ સંકલ્પના ફળ સ્વરૂપે આજે આપણે સર્વ જેમને આમંત્રિત કર્યા છે, આ પવિત્ર દિવ્ય અલૌકિક આત્માઓની સભા છે. પરમાત્મા પિતા પણ વતનથી આશીર્વાદોની વર્ષા કરી રહ્યા છે. આધ્યાત્મિક પુરુષાર્થ, ત્યાગ, તપસ્યા અને સેવાના આ સ્વર્ણિમ 50 વર્ષ મહેસાણા સબઝોનની એક દિવ્ય વિભૂતિઓ આ મંગલમય યાત્રામાં આજે પોતાનું શ્રેષ્ઠ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. સન્માન સમારોહની અંદર આપણે બધા જ ઉપસ્થિત છીએ, જેમાં આજે દુઆઓનો સાગર ઉમટી રહ્યો છે. અહીંયા દરેક આત્માઓ પોતાના દિલની શુભ ભાવના અને શુભકામનાની સોગાત લઈને આવ્યા છે અને આજે આકાશમાંથી પણ શુભકામનાની વર્ષા થઈ રહી છે. મંગલ ભાવોના ગીત ગવાઈ રહ્યા છે. આવા મંગલમય પ્રસંગમાં દિલ્હી દરબારથી આપણી વચ્ચે આદરણીય આશા દીદીજી વરદાનો અને શક્તિઓથી શૃંગાર કરવા માટે આવ્યા છે. તહેદિલથી આપણે સર્વ આદરણીય આશા દીદીનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરીએ છીએ, અભિવાદન કરીએ છીએ, અભિનંદન કરીએ છીએ. हवाओं ने गाए आज मंगल गीत, बादल बजाए शहनाइयों के सुर और संगीत, अंबर से पथ में बरसते हैं फूल, हर दिल आज गा रहा है, हर दिल आज गा रहा है, सुवर्ण जयंती की कोटि कोटि बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो. હવે હું આમંત્રિત કરું છું આદરણીય ધારાબેનને આગળના કાર્યક્રમ માટે. મહેસાણા સબઝોનના આ ગોલ્ડન જુબલી મહોત્સવના અધિકારી, વિશેષ વિરલ વિભૂતિઓનું આજે વિશેષ સન્માન થાય એના માટે સુંદર નૃત્ય નાટિકાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં આ વિશેષ વિરલ વિભૂતિઓનું વર્ણન છે કે જેમણે આ ઉત્તર ગુજરાત મહેસાણા ઉપવનની ગૌરવશાળી ગાથાને યશસ્વી બનાવવા માટે પોતાનું વિલક્ષણ યોગદાન આપેલ છે. છેલ્લા 40-50 વર્ષથી આધ્યાત્મિક સેવા યાત્રા
જેમાં અનેક પ્રકારના ચઢાવ ઉતરાવ, વિઘ્ન, ખુશી, ગમ બધી જ પરિસ્થિતિઓમાં પાસ વિથ ઓનર બની અને આ આત્માઓ જે હોવનહાર ભવિષ્ય દેવાત્માઓ છે જેમનું વિશેષ દર્શન અને સન્માન થશે. તો હું આમંત્રિત કરું છું આ કલાકારોને કે જેઓ આપણને અવિરલ વિભૂતિઓની સેવા યાત્રાનું દર્શન કરાવશે. આ એવી યથગાથા ઉત્તર ગુજરાત મહેસાણાના ગૌરવશાળી ઇતિહાસના સુવર્ણ પન્નાઓમાં સોનેરી અક્ષરોથી લખાશે અને યુગો યુગો સુધી જેનું ગાયન થશે. તો આવો આવા વિશેષ રૂહાની પ્રભુ રત્નોનું વિશેષ દર્શન અને સન્માન કરી ખુદને ધન્ય ધન્ય બનાવીએ. તો નિહાળીએ આ સુંદર નૃત્ય નાટિકાને. नाटिका रूप से रूपांतरण. नमस्कार, आज की हमारी आपसे मुलाकात रियल गोल्ड के नाम, रूह से रूप बनने वाली, मोल्ड होके रियल गोल्ड बनने वाली वो आत्माएं जिसमें पूरे 84 जन्मों के अनुभवों का गोल्ड भरा हुआ है. इस अंतिम जन्म में 50 वर्ष पूर्ण करके इस मुकाम पे पहुंची हुई आत्माओं के लिए गोल्डन जुबली का ये साल आपके नाम, गोल्डन जुबली का ये साल आपके नाम. परिवर्तन के परम पर्व में धरा गगन मिल गाए. परिवर्तन के परम पर्व में धरा गगन मिल गाए. प्रभु परम धाम से आए हैं, वो स्वर्णिम युग ले आए, स्वर्णिम युग ले आए. Jubilee celebrations, congratulations, 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 congratulations. सबका जो सहारा है, जिसको सबने पुकारा है. सबका जो सहारा है, जिसको सबने पुकारा है. परम धाम से पिता वो प्यारा, परम धाम से पिता वो प्यारा ब्रह्मा तन में पधारा है. ब्रह्मा तन में पधारा है, ब्रह्मा तन में पधारा है. धरती नगमे गाती है, धरती नगमे गाती है. अंबर भी गुनगुनाए, अंबर भी गुनगुनाए, अंबर भी गुनगुनाए, अंबर भी गुनगुनाए. प्रभु परम धाम से आए हैं, वो स्वर्णिम युग ले आए, स्वर्णिम युग ले आए. काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं. मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी माँ के बराबर कोई नहीं. तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं. मेरी माँ के बराबर कोई नहीं. मेरी माँ वैसी ही है जैसी मैं उसे देख रही हूँ. उनको माँ कौन बना रहा है? संतान के बिना तो माँ बन ही नहीं सकती है. मेरे लिए तो माँ अच्छी या सर्वश्रेष्ठ तभी होगी जब मैं उनके आगे श्रेष्ठ बेटी बनकर रहूं.
मेरे ऊपर ही उनका व्यवहार निर्भर करता है ना? माँ की ममता, मातृत्व भी उसी रंग में रंग जाएगा। ईश्वर पिता की सर्वश्रेष्ठ रचना मेरी माँ ही तो है। उसी परिवार में एक दिन 7 जुलाई 1953 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के छोटेलाल शर्मा और श्रीमती देवी के वहां एक सतोप्रधान नन्ही सी आत्मा ने शरीर का वरण किया। आत्मा बिना आवरण के नहीं रह सकती है, कारण शरीर का आवरण सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर का आवरण स्थूल शरीर है। हमारा संसार नाम रूप पर आधारित है। संपूर्ण जीवन शैली ही वर्ण और आवरण पर आधारित है। वर्ण जीवन की आवश्यकता है तो आवरण अनावश्यक स्वरूप है। कैसा विरोधाभास है ये। रूह ने रूप का वर्ण किया, नाम था सरला। ऐसा स्वरूप जो अग्नि और सोम का मिश्रण, अग्नेय सौम्य स्वरूपा सरला। सुखी संपन्न हंसता गाता गुनगुनाता ब्राह्मण परिवार, माता पिता दादी, 4 बेटियां और 1 बेटा। इस ब्राह्मण परिवार की मुखिया थी दादी माँ, जो पूर्ण परायण भक्त वत्सल, बच्चों को भी भक्ति का ही पाठ पढ़ाया। एक दिन माता श्रीमती देवी ने आवाज लगाई, बेटी कहाँ हो तुम? पूरा घर छान मारा, कहाँ है ये लड़की? बहुत जिद्दी हो गई है, आने दे उसके पापा को, फिर खबर लेती हूँ। फिर तो क्या? देखती ही रह गई माँ। ये क्या? बेटी तो मंदिर में पूजा घर में कृष्ण की राधा बन करके बैठी है, लगन में मगन। माँ सोचती है मेरी बेटी तो सच्चा सोना है। ये है माँ की बच्ची से सच्चे दिल की दुआ। पिताजी जमींदार थे। बहुत बड़ा आम का बगीचा था। आमरस पीकर बच्चों का शरीर शक्तिशाली बना, जीवन भी रस से भर गया था। भक्ति का फल ज्ञान है। किसी दिन तो भगवान मिलेगा, ये आश मन में थी। शर्मा परिवार की दादी माँ को उनकी अपूर्व भक्ति का फल मिला। बीज को ही देख लो, अगले वर्षा ऋतु तक सुरक्षित रहे, अतः आवरण आवश्यक भी है। धर्म भी एक आवरण ही है। आवरण हटा तो मोक्ष। आप पहले चुंबक बने, तब लोहे को भी चुंबक बना सकते हैं। पहले आप भक्त बनिए, तब पत्थर को भी भगवान के रूप में पा सकते हैं। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। स्वयं परमात्मा पारसमणि का स्पर्श पाकर के ये परिवार भी पारसमणि बन गया। लौकिक पढ़ाई से भी बढ़कर अलौकिक पढ़ाई को आत्मसात किया। ज्ञान, योग, ध्यान, साक्षात्कार के अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने लगे। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जीवन हमें रोज एक चॉइस देता है, क्या करे
क्या ना करे। इन्हों के जीवन में भी वो पड़ाव आया। बचपन से जवानी दस्तक दे रही थी। शादी की उम्र आई तो निर्णय लेना था, क्या करें। आखिर भी जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या वही जो बाकी सारी दुनिया कर रही है? नहीं नहीं, उस मलिन प्रवाह में नहीं बहना है। हाँ, हम तो शिव प्रियतम को ही वरेगी। चुनाव बिल्कुल सटीक था। उन्हों की दिव्य बुद्धि ने फैसला कर लिया, दिव्यता को ही वरूंगी, झूठे आवरण को हटा दूंगी, स्वयं वर रचाऊंगी, स्वयं शिव को ही अपना वर चुनूंगी। लक्ष्य स्पष्ट हो तो पूरी कायनात साथ देती है। आखिर वो दिन आया आज। सबसे बड़ी बेटी नाम है सुधा, ज्ञान सुधा को तृप्त करने वाली, देहिक सुध बुध फुलाने वाली, रहम और रहमत की मूर्ति ज्ञान सुधा बनकर निकले हैं ब्रह्मा कुमारी सुधा दीदी जी। मंजली बेटी नाम है प्रभा, प्रभा वातावरण में फैलाती हुई अंधकारमयी रात्रि को सुप्रभात करने वाली, स्वयं का प्रभा मंडल दुनिया को दिखाती हुई, भक्ति की प्रभात फेरी का फल प्रभु की प्रेरणाओं को प्राप्त करने वाली, अभाव और प्रभाव से मुक्त होकर परमात्मा से प्रभावित होकर निकली है ब्रह्मा की पुत्री ब्रह्मा कुमारी प्रभा दीदी। छोटी बेटी कुसुम हर एक के हृदय को पुष्प की सुगंध से भर देने वाली, जीवन ही संपूर्ण अर्पण समर्पण, फूल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, ज्ञान सुरमा लगाकर चैतन्य फूल अर्पण होने निकला है दर्पण बनकर। धर्म अर्थ मोक्ष के मार्ग पर यज्ञ के अर्थ को समर्थ करने लक्ष्मी स्वरूपा ब्रह्मा कुमारी कुसुम दीदी। देख देख संतान संपत्ति, माता पिता फूले नहीं समाये। लौकिक माता श्रीमती देवी, पिता छोटेलाल शर्मा आनंद की पुष्प वर्षा कर रहे हैं। घर के कुल दीपक चिराग अब बेहद बाप के जादुई चिराग बने हैं। बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन ये भविष्य लक्ष्मी बनने निकली है। 4 बेटियों का पति खुद ही परमेश्वर। माँ बोली, मेरी बेटियां साक्षात परमेश्वरा है। भगवान को जमाता रूप में पाकर धन्य हुई, दिल बार बार गाए वाह ड्रामा वाह। जय हो ऐसे महान माता पिता को जिसने ऐसी संतानों को जन्म दिया। जिनकी मैं आपको कहानी सुना रही हूँ वो है स्टार पुत्री यानी मेरी माँ। क्या कहा? फिर से बोलिए। अच्छा, आप सबकी भी माँ है। ओके, क्या कहूँ मैं, कहने को कोई शब्द ही नहीं है। मौन रहा नहीं जाता। जितनी ऊंची वो है ना, उस ऊंचाई को देखने के लिए मैं भी असक्षम हूँ। श्रेष्ठ व्यक्ति के सपने भी श्रेष्ठ होते हैं। वो सोचती थी कि मैं मीरा नहीं बनूंगी, मैं राधा बनूंगी। मुझे वियोग नहीं, मुझे योग ही भाता है। कहते हैं कि राधा से ही सृष्टि का संचालन होता है। औषधि वनस्पति अन्न पैदा होता है। अन्न ही शरीर में जाकर ओज तेज बढ़ाता है, सृष्टि का विकास होता है। राधा का विपरीत शब्द है धारा। प्रवाह की निरंतरता को धारा कहते हैं। धारा का कार्य है विषयों को दूर करना। तो राधा निकल पड़ी है अपनी धारा के साथ विष्णु की भवप्रिया लक्ष्मी पद्मावती बनने, कृष्ण की मुरली बनने, ब्रह्मा की पुत्री शिव की पोत्री बनने, विजय माला में 108 का दाना बनने, विश्व की मालिक अनुराधा बनने, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सरला दीदी जी। अब क्या हुआ? अब मैं आगे सुनाना चाहूंगी। 1970 में मधुबन घर में शिक्षा और दीक्षा लेने गए। राजस्थान के अरावली गिरिमाला पर्वत के बीच स्थित माउंट आबू में पांडव भवन है। वो विश्वविद्यालय की टीचर्स प्रशिक्षण की स्टूडेंट्स रही। ये वह पूर्व था
जिन्हें अव्यक्त बाप दादा ने तैयार किया था। ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के पश्चात कहते हैं जिन गौओं को कृष्ण चराते हैं वह भी सूर्य रश्मियों के माध्यम से ही इस पृथ्वी पर आ रही है। मधुबन का आध्यात्मिक प्रकाश दीदी जी की मूर्ति को तराश रहा था। वो भविष्य की तकदीर की तस्वीर बन रही थी। परमात्मा अपने प्रेम के रंग लगा रहे थे। जितनी श्रेष्ठ मूर्ति उतने छेनी हथौड़ी के घाव भी झेलने पड़ते हैं। दादियों का प्यार और दुलार पाकर के हंसते हंसते उस समय को पार किया। स्थूल और सूक्ष्म हर बात में परफेक्शन आता गया। विशुद्ध धारा अब तैयार है बहने के लिए। मधुबन से मुरादाबाद, मुरादाबाद से मधुबन, मधुबन से मेहसाना, बीच में 1 साल की यात्रा दिल्ली की भी रही। मधुसूदन के साथ माधुरी बनकर मेहसाना में कदम रखा। मधुसूदन के साथ माधुरी बनकर मेहसाना में कदम रखा 1974 को। गोपाल की नंबर 1 गैया जो ज्ञान दूध का स्रोत है, संपूर्ण पालन पोषण करती है, वो आ गई है मेहसाना दूध सागर डेयरी के पास। स्थूल और सूक्ष्म दूध का भंडार है जो पूरे भारतवर्ष में पहुंचा रहा है। ये है अद्भुत सहयोग। कहानी का नया मोड़ तो अब शुरू होता है। 108 की माला में आने वाली आत्माओं के लक्ष्य और लक्षण भी बड़े निराले होते हैं। उनके अंदाज बड़े बड़े इतिहास रच डालते हैं। मेरी ये माँ तो क्या है, क्या बताऊं, उनके कद का कोई उल्लेख नहीं हो सकता है। रूप का रूपांतरण एक सेनानी के रूप में। शंभो शिव शंकर, हर हर एक चक्रवर्ती चक्रधारी ने सेवा यात्रा प्रारंभ किया। मेहसाना में सेवा यानी सेवा का मेवा क्या है वो तो आज आपके सन्मुख है। सबसे पहले चक्रधारी आत्मा ने अपने स्वराज्य के साम्राज्य में अपनी सेना तैयार की। अद्भुत गुप्त योद्धा बनकर ऐसी ऐसी आत्माओं को सेना में भर्ती किया जो तन मन धन सब कुछ बलिहार कर खुद भी बलिहार जाने को सज्ज थी। एक ऐसी सेना जिसका सेनानी बड़ा पावरफुल हो तो राज्य भी निर्विघ्न रहता है। कैसे मैं उन प्रारंभ के नौजवानों को भूल सकती हूँ। सेना के बड़े बड़े महारथी कांति भाई, शांति भाई, नारायण भाई, बबल भाई, हरीश भाई, धनजी भाई, जो आज भी एडवांस पार्टी में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो हमारे बीच उपस्थित है वही पिलर्स शंकर भाई और जगमाल भाई। 50 साल की इस यात्रा के कुछ साथी आज हमारे बीच उपस्थित है। आइए उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। रचा के ऐसी सन गई मैं, योद्धा बन गई मैं।
आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव। सेना तो सेना होती है, जब जब मुहिम पर निकलती है तो भवन के सुख वैभव आराम कुछ नहीं देखती है। उनका ध्यान तो केवल लक्ष्य पर ही केंद्रित रहता है। प्रारंभिक यात्रा कुछ ऐसी ही रही, कोई साधन नहीं, कोई सेल्वेशन नहीं। जहां जाओ विरोध और उपहास का सामना करके भी विकारों पर विजय प्राप्त कर ही डाली। सेना तैयार है मैदान में माया से विजय होने को। दिग्विजय आत्मा के दिग्विजय के चर्चे चारों ओर गूंज रहे थे। इस चक्रवर्ती शेर की दहाड़ से सब असुर भयभीत होने लगे थे। समय की यात्रा आगे बढ़ी। यज्ञ कन्या अग्नि स्वरूपा रूप ने फिर से रूप बदला। रूप का रूपांतरण ज्ञान सूर्य बनकर विश्व गगन में चमकने लगा। सूर्य ऊपर आकाश में है, लेकिन प्रकाश पूरी पृथ्वी पर फैलता है। ऐसे ही इस माँ ने यानी कि ज्ञान सूर्या ने एक एक ज्ञान चंद्रमा का आवाहन किया। सूर्य प्रकाश से चंद्रमा भी चमकता है। तृप्ति बहन जी ज्ञान चंद्रमा बनकर धरती पर चमकने लगे। अनेक सितारों को तैयार किया। उन सभी सितारों ने मिलकर के भावनगर की भूमंडल को चमका दिया। आपका भी आज इस स्टार परिवार में स्वागत है, अभिवादन है। चाँद सितारे सब तेरी ही सृष्टि है माँ। सूरज चाँद सितारे सब तेरी ही सृष्टि है माँ। तेरी रचना हर मानव को सहजी बना दो विजय हुआ तो यश नाम मान शान बढ़ना ही था। उत्तर गुजरात के चारों ही कोनों को अब गढ़ बनाना था। चारों तरफ किले बनाकर उसे सुरक्षित भी करना होता है। अब रूप ने करवट बदली। रूप परी का रूपांतरण हुआ। रूप परी ने पाटन में सेवा करके फिर एक नीलम परी का आवाहन किया। रूप का रूपांतरण रूप परी में। परिस्थान की परियों ने शिव की झलक दिखाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से जननी जगदम्बे घोड़ा भवानी अम्बे आंगणे पधारो। आज तमे पाटण ना पटराणी थईने आवो। आज तमे पाटण ना पटराणी थईने आवो। हे रूम झुम करता आवो। कुमकुम पगला पाड़ो माँ तमे आवो। आज मारा रुदिया ना मंदिरिये रमवावो। ये आज मारा रुदिया ना मंदिरिये रमवावो।
પાટણ ના પટરાણી થઈને પાટણ ના પટરાણી કે આજ તમે પાટણ ના પટરાણી થઈને मेरी इस अलौकिक माँ को एक आप्त पुत्र भी है। उनकी भुजा राइट हैंड पार्वती माँ के साथ सदा गणेश जी रहते थे। तो सबसे ऊंचा गढ़ गॉडली पैलेस का गणेश माँ की छत्र छाया में माँ का लाडला राज दुलारा सबका प्यारा राजकुमार ब्रह्मा कुमार जय किशन भाई। ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है। परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। रूप का रूपांतरण अब सौम्य स्वरूपा सरला दीदी जी। गंगा तेरा पानी अमृत। सोम यानी पानी बनी ज्ञान गंगा। बनाया अनेकों को आप समान ज्ञान गंगाए। नदियाँ तो है ही प्यासी सागर से मिलने को। धारा धार बनकर के बहने लगी पालना करती हुई पालनपुर की ओर। प्रचंड धारा से पूर होकर बहाने लगी पालनपुर के प्राणों को माँ भारती को नमन। वरुण देव की प्यारी रेणुका बहन को प्रणाम। पालना और प्यार की पुचकार देकर ईश्वरीय नियम मर्यादा का पालन करती हुई आई है दोनों देवियाँ पालनपुर से। पानी के समान तरल सरल पालनपुर की पालनहार दोनों बहनों का सादर सत्कार सादर सत्कार। दूर हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती। बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत। रूह ने रूप का वर्ण किया रूप से रूपांतरण हुआ बागवान। मेरी माँ बनी रूहानी माली। माँ के बगीचे का रूहे गुलाब। माँ के बगीचे का रूहे गुलाब वडनगर के आदरणीय ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका भी है। आपकी खुशबू तो पूरे वडनगर में फैली है क्योंकि आप गुलाब हो। साथ साथ कुकरवाड़ा से पधारे हुए ब्रह्मा कुमारी जोशना बहन का भी स्वागत शुभ स्वागत। बगीचे के सरोवर के कमल पुष्प हो आप। कमल पर आसीन होकर बुराई से न्यारे प्यारे रहने वाले हमारे जोशना बहन जी पधारिए स्वागत है। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। ओ मधुबन की આપણે જોરદાર તાળીઓથી આપણી આ ઉત્તર ગુજરાતની સેવા યાત્રા અને એની ગાથા જે ખરેખર હૃદયને સ્પર્શી લેવી છે। જોરદાર તાળીઓ આપણી અટકવી ના જોઈએ। ખરેખર આ એ યાત્રા છે જેમાં દરેક બહેનોએ પોતાનો એક એક શ્રેષ્ઠ શ્વાસ સંકલ્પને સફળ કરી અને આ વટવૃક્ષનું નિર્માણ કર્યું છે। આપણે એમના સન્માનને ખૂબ સુંદર તાળીઓના ગુંજનાદથી વધાવીશું। रूप का रूपांतरण हीरे में हीरा कोहिनूर सुख शांति समृद्धि का प्रतीक। जहाँ दीदी कोहिनूर है तो ब्रह्मा कुमारी सुरेखा बेन माणिक मोती के समान है। फ्लोलेस चमकने दमकने वाले अपनी रोशनी से सभी डीसा परिवार को भी रोशन करने वाले आपका
हमारे इस डायमंड दीदी जी के द्वारा स्वागत है, सत्कार है। भले पधारिए, गले का श्रृंगार भले पधारिए। जिन्हों को परमात्मा प्रेम मिला हो, ऐसी हमारी प्यारी सी प्रेमिला बहन जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। पन्ना पुखराज हीरे के समान झिल मिलाने वाले राधनपुर निवासी, परमात्मा प्रेम लीला दिखाने वाले ब्रह्मा कुमारी प्रेमिला बहन, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी काश्मीरा बहन, परमात्मा का करिश्मा दिखाने वाली काश्मीरा बहन, वेलकम वेलकम। आइए दीदी जी। सचहु तू जन्नत के हूर लागेलू, सोना चांदी नहीं हीरा कोहिनूर लागेलू, सोना चांदी नहीं हीरा कोहिनूर लागेलू। सचहु तू जन्नत के हूर लागेलू, सचहु तू जन्नत के हूर लागेलू, सोना चांदी नहीं हीरा कोहिनूर लागेलू, सोना चांदी नहीं हीरा कोहिनूर लागेलू। रूप का रूपांतरण जगत जननी माँ भवानी, अड़ग मनोबल की धनी, मेरु पर्वत सी दृढ़ता की शक्ति, हिमालय के शिखर पर विराजमान आदि शक्ति माँ भवानी भव प्रिया। आज आदि माता का बुलावा आया है तो ऊंजा से माँ उमिया क्यों नहीं आएगी। आइए माता स्वरूपा इजू बहन जी, भक्तों के दुख की पुकार सुनी तो सुनकर अनसुना नहीं कर सकी। माँ भक्तों की रक्षक रक्षा बहन निकल पड़ी रणचंडी बनकर, 20 नाखूनों का जोर देकर विसनगर से सबका विष हरने रक्षा बहन। आइए पधारिए, आपके साथ मैं बुलाती हूँ। आइए माता स्वरूपा इजू बहन जी, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी इजू बहन एवं विसनगर से रक्षा बहन। तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया तूने 10 भुजाओं से संभाला। જોરદાર તાળીઓથી આપણે આ નાટકને વધાવીશું। આપણી સુંદર સેવા યાત્રા, દિવ્ય વિભૂતિઓના જીવનને આપણે નિહાળી રહ્યા છીએ, એમની મહિમાના ગુણગાન થઈ રહ્યા છે, ત્યારે આપણે તાળીઓથી આપણા સામે બેસીને સહયોગ જરૂર આપીશું। જોરદાર તાળીઓ। रूप का रूपांतरण पवित्र औषधि तुलसी, रूप का रूपांतरण पवित्र औषधि तुलसी। भिलडी से पधारे हुए हमारे आदरणीय ब्रह्मा कुमारी वसंत बहन जी, वसंत ऋतु आती है और सारे पुष्प खिल जाते हैं, ठीक वैसे ही वसंत बहन जी आपकी रंगत बड़ी निराली है। सदा खुशहाल रहने वाले, बड़ों के साथ सदा हाजी में हाँ करने वाले, सबको राजी करने वाले, ऐसे ब्रह्मा कुमारी वसंत बहन जी आइए। स्वागतम, शुभ स्वागतम। भद्राणि पश्यन्तु। खैरवा से पधारे हंस आसन धारिणी हंसा बहन जी आइए। स्वागतम, शुभ स्वागतम। बेचराजी से पधारे हुए ब्रह्मा कुमारी गीता बहन, आपका पवित्र मनमोहक मुख तुलसी के समान सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत, परमात्मा के आंगन का तुलसी का क्यारा, अति पूजनीय ऐसी गीता बहन आइए पधारिए, आपका हार्दिक अभिवादन है। इस सम्मान समारोह में आपका सम्मान है,
आइए दीदी जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मूर्तिकार की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति मेरी माँ। रूप माँ ने मास्टर मूर्तिकार बनकर अनेक मूर्तियों को रचा। रूपांतरण हुआ चैतन्य म्यूजियम में। आप देखना चाहोगे? આપણા સૌની પ્યારી મા માટે જોરદાર તાળીઓ આપણે વગાડીશું, જેમણે આટલી સેનાને તૈયાર કરી છે. અને હીરા आदि मूर्तियों का स्वागत, अभिवादन, शुभ आगमन हो रहा है। महसाना की भोली भंडारी, गंभीरता की मूरत गौरी बहन, आंबलिया सन से पधारी माँ अम्बा समान बिंदु बहन तथा हीरा माता पधारिए। आप सबका ये मंच स्वागत और सत्कार करता है। तुझे देखने को मैं क्या हर दर्पण तरसा करता है। रूप का रूपांतरण विराट रूप में। राजा सत्यवाना पहुँचे शिव बाबा के मधुबन में, हुआ हार्दिक स्वागत उनका पांडव भवन के प्रांगण में। महाभारत काल में परमात्मा के विराट रूप का दर्शन तो अर्जुन ने किया था। आज आपके समक्ष साक्षात उस परमात्मा की गुप्त विराट वृष्टि का दर्शन होने जा रहा है। विराट रूप के रूपांतरण को आपने देखा होगा। सबसे ऊपर चोटी जिसे ब्राह्मण कहते हैं, परमात्मा की पहली रचना, सर्वश्रेष्ठ रचना, शूद्र रूप से रूपांतरण होकर ब्राह्मण बनी है ये आत्माएं। ब्राह्मण रूप से रूपांतरित होकर के फरिश्ता स्वरूप को धारण करने वाली यही आत्माएं है। फरिश्ता रूप से देवता स्वरूप में रूपांतरण होने वाली यही आत्माएं हैं। देखो, ध्यान से देखो इन्हें। देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र की प्रभु लीला की ये हीरो पाठधारी आत्माएं हैं, जो आप सबसे इस मन से आँख बिना जो सब कुछ देखे, रंग बिना जो જોરદાર તાળીઓથી આપણે આ નૃત્ય નાટિકાને વધાવીએ, આ કલાકારોને વધાવીએ અને આ યશ ગાથાને વધાવીએ. चित्रकार है निराकार, वो चित्रकार है सबका सर्जनहार। कौन वो विराट रचनाकार, कौन वो विराट रचनाकार। आरंभ श्रेष्ठ तो अंत भी शुभ। मैंने अपनी इस अलौकिक यात्रा का शुभारंभ मेरी माँ के साथ ही किया है। जैसा संग वैसा रंग। मैं आदिपुर से कुमारी किरण रावल, आदि कुमारी ब्रह्मा कुमारी, मेरे रूप को भी मेरी माँ ने ही रूपांतरित किया है। आज इस मंच से आपके चरणों में लाख लाख वंदन करते हुए किरण। अपने कर्म ही मानव को ताज तख्त दिलाए।
श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। बिन मांगे उसे मोती मिलते, बिन मांगे उसे मोती मिलते, वो सदा मुस्कुराता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। दुआएं बनकर जग की सेवा हार गले का बन जाए, उनकी तपस्या ताज बनकर जग में शान और आन बढ़ाए। त्याग कभी फिर राज बनकर, त्याग कभी फिर राज बनकर सुख आनंद लुटाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। गुण का दान ही भाग्य बनकर हर संपत्ति ले आता है, उसका कर्म ही राज तिलक बन ये ललाट सजाता है, उसका तीव्र पुरुषार्थ ही, उसका तीव्र पुरुषार्थ ही ऊंच तख्त दिलाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। જોરદાર તાળીઓથી આપણે વિશ્વ મહારાજન સતયુગી ભવિષ્ય રાજધાની દિલ્હીથી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. આ દીદી સ્ટેજ પર જઈ રહ્યા છે. આદરણીય પરમ શ્રદ્ધેય આશા દીદીજી અને પરમ વંદનીય આપણા સૌના માં સમાન સરલા દીદીજી આ સતયુગી દરબાર સજી ચૂક્યો છે અને બંને વિશ્વ મહારાજન ભવિષ્ય રાજધાનીને સજાવવા માટે સ્ટેજ પર ઉપસ્થિત થઈ. જોરદાર તાળીઓ, હાથ ઊંચા કરીને તાળીઓ પાડો. આપણી તાળીઓ અટકવી ના જોઈએ જ્યાં સુધી બંને દીદીજી સ્ટેજ પર પોતાના વિશ્વ મહારાજનના આસનને ગ્રહણ ના કરે. જોરદાર તાળીઓ, આખા સભા મંડપને ગૂંજવી નાખો. મહેસાણાના ખૂણે ખૂણે સુધી આવાજ પહોંચવો જોઈએ કે મહેસાણાની આ ધરણી પર પરમાત્માના મહાન વિશ્વ વિભૂતિઓ આમંત્રિત થઈ રહ્યા છે. સતયુગી દિવ્ય દરબાર પણ આ વિશ્વ મહારાજનના સ્વાગત માટે સર્વ પોતાના સ્થાન પર ઊભા થઈ આ ભવિષ્ય દેવી દેવતાઓ પણ એમનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. જોરદાર તાળીઓ, હાથ ઊંચા કરી કરીને તાળી પાડો અને સન્માનિત કરો. આ સન્માન સમારોહની આ પોતાનું એક પણ ક્ષણ વ્યર્થ ના કરો. પોતાના પૂરા સહયોગ, દુઆઓ અને સન્માનથી આ વિરલ વિભૂતિઓને પોતાની શુભ ભાવનાઓનું દાન કરીએ. આપણને પોતાની અમી દ્રષ્ટિથી શક્તિશાળી દ્રષ્ટિ આપી અને આપણને સૌને વરદાનો અને શક્તિઓથી સંપન્ન બનાવી રહ્યા છે. સન્માન છે અવિરત નિસ્વાર્થ સેવા યાત્રાનું. સન્માન છે અવિરત નિસ્વાર્થ સેવા યાત્રાનું.
સન્માન છે અચલ અડોલ અખંડ ત્યાગ તપસ્યા અને સમર્પણમયતાનું. સન્માન છે અતૂટ આત્મવિશ્વાસ અને દ્રઢતાની બુલંદ મિસાલનું. સન્માન છે હજારો અનમોલ સફળતાનું. સન્માન છે પરમાત્મા સાથેના નિશ્ચય પવિત્ર પ્રેમનું. નૂર ઉનકા ઝોહર ઉનકા ફિર ના દેખે તો ગુનાહ કિસકા. સ્ટેજ સચી ચૂક્યો છે. સર્વ નાટકના કલાકારોને આપણે જોરદાર તાળીઓથી વધાવીશું. ખૂબ સુંદર રીતે પોતાના પરફોર્મન્સથી આપણા સૌના હૃદયને સ્પર્શ કરી એટલી આ સુંદર સેવા યાત્રાને, આ વિરલ વિભૂતિઓના જીવનને આપણી સમક્ષ પ્રસ્તુત કર્યું છે. હવે આ દરબાર સજી ચૂક્યો છે ત્યારે કાર્યક્રમની શરૂઆત આપણી ભારતની સંસ્કૃતિની એ શ્રેષ્ઠ પરંપરા, એ પરમાત્માની પરમ સ્મૃતિથી થાય છે. તો સર્વની ડૂબતી નૈયાને પાર કરવાવાળા ભોળાનાથ, જહાનના માલિક, દરિયાએ મોહબ્બત, દરિયાએ અમન, જેમણે આપણા સૌના જીવનને આવું અલૌકિક અને દિવ્ય બનાવ્યું છે. તો આવી શ્રેષ્ઠ ભાવનાઓને આપના હૃદયમાં આરોપિત કરી આવો 3 મિનિટ માટે એ સર્વશક્તિવાન પ્રભુ પિતાની પરમ સ્મૃતિમાં બેસીએ. गिरते गिरते मुझको सहारा, सब तेरा